So today we will see the measurement techniques by measurement of power by one watt meter and 2 watt meter method. Measurement of, please write down the heading. Measurement of power by 1 watt meter, 2 watt meter method. 2 watt meter method. Have you noted down the heading? Watt meter method. लिखा भाई सभी लोगों ने? So what do you mean by watt meter? What do you mean by watt meter? Yes, anyone? सर जो डिवाइस पावर मेजर करती हो. Okay. So which type of power we are getting from watt meter? Average power, sir. Active power. Active power. Okay, so watt meter is a device which consists of, there are two coils. Which type of coils? There are two types of coils in watt meter. पहले तो भाई watt meter का डायग्राम बना लो तुम लोग. डायग्राम बनाए सभी लोग. This is watt meter W. Okay. So we are having two coils in this. तो एक ये वाली कॉइल कौन सी है जो ऊपर वाली है जो दिख रही है आप लोगों को? बताओ जल्दी. दिस वन जिसपे मैंने एरो लगाया है अभी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉइल? हेलो, कहाँ गए यार? आदित्य. यस सर. कौन सी कॉइल है यार ये? नहीं कोई बताना नहीं चाह रहा है क्या? ऐसा ना करें प्लीज. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉइल? सर करंट कॉइल. इतना समय क्यों लग रहा है बताने में? इतना टाइम ना लें यार प्लीज यार. ठीक है. सो ये वाली जो कॉइल है दिस इज करंट कॉइल. ओके. और ये वाली जो कॉइल है दिस इज प्रेशर कॉइल. दिस इज प्रेशर कॉइल है ना. अब तुम लोग नहीं बता रहे हो तो फिर फटाफट मैं ही बता देता हूँ सारी चीजें. रिकॉर्डिंग एक्सेस हो नहीं पा रही है तो फिर अब बात का अपन को पता नहीं है. Okay, so wattmeter is a device which is used to calculate the power, which is used to measure the power. और wattmeter पे अपन लोगों को एक्टिव पावर मिलता है. ये अपन ने प्रैक्टिकली अपन ने देख ही लिया था. So for getting the total power, we have to multiply the reading of the wattmeter with multiplication factor. And I guess everybody knows what is multiplication factor because most of the students have completed their experiment for tube light and choke coil. और कुछ का शॉर्ट सर्किट भी हो चुका है. ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मालूम है ना आप लोगों को? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट दी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? V range into I range into cos phi divided by FSD. What is FSD? Full scale deflection of wattmeter. Right. ठीक है ना. तो अपन अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्यों करना पड़ता है अपन को, ये चीजें भी क्लियर हो गई है ना. प्रेशर कॉइल की कैलिब्रेशन और करंट कॉइल की कैलिब्रेशन से जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होगा दैट इज द वाट मीटर. और how much amount of that wattmeter is calibrated to calculate the amount of current which is going through it and the amount of voltage that is passing through it in order to get the active power of the circuit, right? So multiplication factor is nothing but ओके वी रेंज है ना. वी रेंज को अपन बोल सकते हैं
पीसी, पीसी बोल सकते हैं, है ना। और ये करंट कॉइल को अपन बोल सकते हैं सीसी। तो आई रेंज कर दें इसको, करंट कॉइल ये सीसी हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, ये पीसी हो जाएगा, और इसकी रेंज राइट, डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वाटमीटर इनटू cos phi, that is the power factor of that wattmeter. Okay, so wattmeter is a device which consists of a current coil and a pressure coil and gives the reading of power in watts and always connected in, and that is always connected in, अब लाइन से कनेक्ट होता है कि फेज से कनेक्ट होता है? wattmeter is always connected in फेज और लाइन, connected in phase to calculate the power. ये पॉइंट लिख लेना यार दोस्त, to calculate the power. Okay, so wattmeter is a device which consists of a current coil and a pressure coil, and that is always connected in phase to calculate the power. Okay, चलो आगे बढ़े. So today we shall learn how to measure the three phase power by 1 wattmeter method. आज एक सिंगल वाटमीटर मेथड वाला अपन लोग देख लेते भाई कि कैसे पावर को मेजर करा जा सकता है. तो प्लीज ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम सभी लोग बनाएंगे. क्लास खत्म होने के बाद चैट बॉक्स में ये जो आज की क्लास का जो मटेरियल है वो सभी लोगों को पोस्ट करना है, फोटो खींच के अपलोड करें. 1 wattmeter method. 1 wattmeter method. अब भाई 1 wattmeter है तो तीन, आप इसमें काय में अपन लोग पढ़ रहे हैं 1 wattmeter मेथड 3 फेज में है ना, 3 फेज सर्किट अरेंजमेंट, राइट. यानी कि इसके अंदर 1 wattmeter रहेगा. ओके, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में यार? कहाँ गए? 21 लोग हैं. Yes, sir. आ रही है. बना लो डायग्राम, है ना. ये एक तीनों फेज बना लेते हैं अपन लोग. आर, 1 वाटमीटर इसके साथ लगा दें अपन, सिंगल वाटमीटर. आई आर. ओके, लोड लगाना जरूरी है. ये 3 फेज का लोड हो गया, 3 फेज का लोड हो गया. नहीं बोलोगे तुम लोग, मुझे पता है कोई भी नहीं बोलेगा, है ना. आर हो गया, ये अपना वाई हो गया, और दिस इज बी, आर वाई बी. अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करें अपन. तो वी विल गिव 2 switches here, 2 switch here. लिखवा दूंगा इसके बारे में अभी मैं. ये दिस इज स्विच नंबर 2, दिस इज स्विच नंबर 1. Okay, so how to measure 3 phase power by 1 wattmeter method, although it is not very popular method with respect to 2 wattmeter method. Okay, this is not a very popular method with respect to 2 wattmeter method, but still it is a method which you can measure a 3 phase power by using 1 wattmeter method, by using 1 wattmeter. Okay, but remember this method can only be used if the system is a balanced system. This method can only be used if the system is balanced. Okay,
So before starting the topic, first let's move on to the circuit diagram arrangement. So this is our three-phase load here. This is our three-phase load here. ये दिख रहा है आपको, 3 लोड बनाए हैं अपन ने. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And see, this is here. It is here how it is. The wattmeter is connected with one phase. है ना, ये R के साथ में अपन ने wattmeter को connect कर दिया. This is how the wattmeter is connected. So the current is in R phase. Current is in R phase, right? ये देखो IR. The current is in R phase. And the voltage coil, this voltage coil, which one is the voltage coil? ये नीचे pressure coil, ये voltage coil है अपनी. This is the voltage coil. Okay. अब ये voltage coil आप देखो. This voltage coil is connected to 2 number switch. Second number वाले switch से voltage coil connected है. Connected to 2 number of switch to the phase Y and B and phase B. Okay, so this voltage coil can be connected either phase R or phase B by closing either of the switch 1 or 2. Right? भाई ये जो वोल्टेज कॉइल है अपनी, है ना, ये स्विच बनाया है अपन ने. जैसे ये स्विच होता है ना, देखो यहाँ पर साइड में देखें, ये इस तरह से अपन स्विच बनाते हैं. कैसे बनाएंगे स्विच? ये स्विच हो गया अपना. देखो एक कोई लाइन जा रही है अपनी, ये स्विच अपन ने बनाया. जैसे ये स्विच नंबर 2 यहाँ पर है और ये स्विच नंबर 1 यहाँ पर है. तो क्या होता है कि एक टाइम पे स्विच 2 को क्लोज कर सकते हैं अपन और 1 को ओपन कर सकते हैं, और दूसरे टाइम पर स्विच 1 को क्लोज कर सकते हैं इस लाइन के साथ में. ओके. तो जब अपन ये जो वोल्टेज, ये जो अपना वोल्टेज कॉइल है, मतलब ये अपना जो प्रेशर कॉइल है, एट ए टाइम स्विच, एट ए टाइम ये अपना Y फेज से भी कनेक्ट हो सकता है और B फेज से भी कनेक्ट हो सकता है. दिस वोल्टेज कॉइल कैन बी कनेक्टेड टू आइदर ऑफ द फेजेस R और फेज B by closing either of the switch 1 or 2. So when switch 1 is closed, then current measured is IR, and the if switch 1 is closed, if this switch is closed, switch को अगर अपन क्लोज करते हैं तो जो करंट मेजर होगा अपना, if switch 1 is closed, the current measured is IR, and the voltage measured is VRY. Okay. If the switch 1 is closed, the current measured is IR, and the voltage measured is VRY. And when switch 2 is closed, the current measured is IR, and the voltage measured is, लिख देते हैं, voltage measured कितना होगा if switch 2 is closed? बताओ जल्दी, voltage measured कितना होगा? VRB, right? Okay. So if switch 2 is closed, the current measured is IR, same रहेगा, and the voltage measured is VRB. ये तो इसका सर्किट अरेंजमेंट हो गया. इतना सही था इसका सर्किट अरेंजमेंट. अभी वेक्टर अरेंजमेंट पे चलते हैं अपन लोग, है ना, वेक्टर डायग्राम के ऊपर चलते हैं. वेक्टर डायग्राम कर लेते हैं अपन. देखो क्या करेंगे अपन लोग वेक्टर डायग्राम में. दो अभी अपन ने यहाँ पर कौन कौन से ले लिए, मतलब स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को क्लोज और ओपन कर रहे हैं अपन लोग. वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, मतलब वही फेजर डायग्राम बना लेते हैं. फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम उसको बना के देखते हैं अपन कि
जो टोटल पावर आ रहा है अलोंग दी फेजेस वो कितना आ रहा है, राइट। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, क्या लगता है? वी आर, वी बी और वी वाई, वी आर, वी बी एंड वी वाई, इन तीनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना? कितना? 120। 120, ठीक है। और कल अपन ने देखा था भाई जहां से रिजल्टेंट आ रहा है और फिर उसके रेस्पेक्टिव फेज पे उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना? देखो मैं फेजर डायग्राम बना देता हूँ पहले, फेजर डायग्राम में बना देता हूँ तुम लोगों को पहले, फिर उसके बाद फिर फेजर डायग्राम देख के तुम लोग बताना कि भाई ये फेज डिफरेंस, जैसे अपन थीटा लेके चलते हैं है ना, फेज डिफरेंस थीटा लेके चलते हैं तो 60 प्लस थीटा रहेगा, 30 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा या 120 प्लस थीटा, दो फेसेस के बीच में डिफरेंस है ना। अगर आई आर जो है अगर वो दैट इज द करंट लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज वी आर बाय एन एंगल थीटा, सो व्हाट विल बी द मिरर इमेज और द रिजल्टेंट ऑफ दैट वी आर वाई, दैट विल बी वी आर प्लस माइनस वी आर वाई, वी वाई। जैसे वी आर है ना, वी आर हो गया अपना, और इससे जो अपना करंट है आई आर दैट विल बी लैगिंग, ये अगर लैगिंग है बाय एन एंगल ऑफ थीटा, अपन को एंगल नहीं पता है, दैट इज बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो व्हाट विल बी वी आर वाई, वी आर वाई दैट विल बी वी आर प्लस माइनस वी वाई, ये हो जाएगा। इट इज जस्ट दी मिरर इमेज ऑफ वी वाई, ओके। तो रिजल्टेंट विल बी व्हाट, रिजल्टेंट जो ये जो थीटा है ना, इससे कुछ एंगल प्लस हो जाएगा, रिजल्टेंट 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है, मतलब 30 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 120 प्लस थीटा, इट विल बी लाइक दैट, द रिजल्टेंट विल बी लाइक दैट। और सिमिलरली वी विल फाइंड आउट सम ऑफ, अभी तो अपन जैसे वी आर वाई का निकाला है अपन ने, है ना, अपन वी आर बी का भी रिजल्टेंट देख लेंगे, दैट विल बी also the mirror image of sum of the angle, ओके। अगर अपन देखें कि भाई इक्वेशन नंबर 1 अपनी निकल जाती है कुछ इस तरह से, इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से निकल जाती है, अगर अपने पास दो टाइप के पावर निकल जाते हैं, जैसे पावर क्या है अपना वी आई कॉस फाई है, वी आई कॉस फाई है पावर, वॉटमीटर एक्टिव पावर बताता है ना वी आई कॉस फाई, Yes, sir. ओके। Yes, sir. थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, वी आई कॉस फाई अपना एक्टिव पावर बताता है। तो देखो अपने पास में यहाँ अपन ने क्या लिखा है, जैसे वी आर वाई का आप देखो तो ये क्या हो जाएगा वी आर वाई, और इसके साथ में करंट क्या है अपना, पेज पलट दूं मैं, पेज पलट दूं, Yes, sir. Yes, sir. देखो P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होता है, वी आई कॉस मतलब वी आई कॉस फाई है ना, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। आई अपना करंट है यहाँ पर, तो करंट अपन ने सर्किट डायग्राम में देखो क्या बनाया है, करंट क्या जा रहा है, किस फेज से है वो, आर से है, Yes, sir. देखें पीछे अपन चले, ये देखो आई आर, ओके। तो ये तो अपना हो गया आई आर। अब वोल्टेज अपन को बनाना है, अब वोल्टेज अपन बना रहे थे, तो यहाँ पे देखो वोल्टेज एक टाइम पे स्विच 1 को क्लोज करेंगे अपन, स्विच 1 को क्लोज करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा वी आर वाई, हो जाएगा वोल्टेज वी आर वाई स्विच 1 को बंद करने पे, Yes, sir. वी आर वाई। और जब स्विच 2 को बंद करेंगे अपन, भाई दो स्विच है अपने पास में, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, करंट तो वही रहेगा अपना P इज इक्वल टू, अब जब स्विच 2 को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा वी आर बी हो जाएगा, कहीं देखो स्विच नंबर 2 के ऊपर पावर तो वही रहेगा, और ये हो जाएगा वी आर बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और करंट अपना वही आई आर। अब
अब ये फाई की वैल्यू निकालना है अपन को, ये जो फाई है ना इसकी वैल्यू निकालना है। बात आ रही है समझ में? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये नहीं दिख रही है, वेट। अभी दिख रही है? यस सर। देखो अब मैं क्या बता रहा था, देखो ये स्विच नंबर 1 है, दिस इज स्विच नंबर 1 और दिस इज स्विच नंबर 2। स्विच नंबर 1 के ऊपर भाई करंट तो सेम है और 2 में भी करंट सेम है। स्विच नंबर 1 के ऊपर जब अपन एक स्विच को क्लोज करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, आर और वाई के बीच में हो जाएगा स्विच नंबर 1 जब क्लोज होगा। अरे प्रेशर कॉइल की लाइन जो है वो स्विच नंबर 1 से कनेक्टेड हो जाएगी, और जब स्विच नंबर 2 को क्लोज करेंगे अपन, जब स्विच नंबर 2 को क्लोज करेंगे, इस वाले स्विच को अगर अपन क्लोज करते हैं तो जो वोल्टेज क्या हो जाएगा, आर और बी के क्रॉस में हो जाएगा, सो दैट विल बी वी आर बी। सही लिखा है। अब cos फाई की वैल्यू निकालना है अपन को। cos फाई की वैल्यू निकालना है तो फेजर डायग्राम बनाना तो अपन ने सीख ही लिया था भाई। सिंपल फेजर डायग्राम बनाते हैं अपन लोग, मिरर इमेज बनाते हैं, देन वी विल टेक द रिजल्टेंट 120 डिग्री फेज डिफरेंस के बीच में, और फिर दो फेजेस के बीच का वो निकाल लेते हैं कितना एंगल, कितने एंगल पे दोनों फेजेस लाई कर रहे हैं एक दूसरे से। बना ले। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। बनाओ 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 फटाफट बनाओ। ये हो गया वी आर हो गया, एक वी भी बना दिया अपन ने, वी वाई बना दिया। ओके। अब तुम तो अपना कल वाला फेजर डायग्राम भी निकाल सकते हो, कल वाला फेजर डायग्राम भी निकाल सकते हो, वैसे का वैसे ही है, सेम वही फेजर डायग्राम है। वी आर के अक्रॉस में देखो आप क्या है, अभी माइनस माइनस नहीं बना रहे अपन, एक ही साइड बना लेते हैं यार, है ना। दिस इज वी वाई माइनस वी वाई। ओके ओके। वी आर के साथ में एक स्विच नंबर 1 को क्लोज करेंगे, दैट विल बी माइनस वी वाई। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। वी आर वाई रिजल्टेंट यस वी आर। सर। ओके है ना। अब ये देखो वीबी है ना, इस ये माइनस वी वाई अपन ने बनाया, ये इसका भी मिरर इमेज बनाओ आप, माइनस वीबी। ओके माइनस वीबी। अब वी आर और अब ये वी आर है अपना और ये माइनस वीबी है ना। अब इसका रिजल्टेंट बताओ मुझे क्या रहेगा, वी आर बी। वी आर बी। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है? दिस इज यस सर। वी आर बी। ओके। अब बड़े ध्यान से आप बताएं मुझे, बड़े ध्यान से बताएं आप कि if current is lagging, if see this is our phase, VR VY and VY, if IR is lagging behind VR, if IR, ये देखो मैं लैगिंग बना देता हूं, यहां पर दूसरे कलर से बनाते हैं कुछ। if IR is lagging behind, if this IR is lagging behind by an angle theta, if this IR is lagging behind by an angle theta, so VRY will be VR plus minus VY. So see, that is just the mirror image of VY. It is just the mirror image of VY. So then the resultant angle will be, what will be the resultant angle? What will be the resultant angle? This one. What will be the resultant angle? Theta plus 60 degree. 30 degree. यस सर 30 plus 30 डिग्री।
30 प्लस थीटा, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। 60 नहीं रहेगा बाबा, वो है ना 60, तो ये पूरा रहेगा ना, पूरा रहेगा Yes, ना, sir. माइनस वी वाई से वी आर की तरफ। ओके, तो ये 30 डिग्री। अपन को ये पता नहीं है भाई कि आई आर कितना लैग कर रहा है ना, तो अपन ने थीटा डिग्री ले लिया उसको, तो दिस विल बी 30 प्लस थीटा। तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? 30 माइनस थीटा, 30 30 माइनस थीटा, दिस विल बी 30 minus theta. Okay, similarly you can find this VRB, this VRB, देखो भाई VRB, this is the mirror image of VB, ये रहा VB अपना, और this VRB, this is the mirror image of VB. So summing out, if we are summing out VR and minus VB, and the angle between VRB and IRB will be 30 minus theta. ओके, और इसके बीच का जो एंगल था दैट विल बी 30 प्लस थीटा, दैट विल बी 30 प्लस थीटा, ब्रैकेट में कर लें इसको, ठीक है। So this is all about the phasor diagram. Now let us see the mathematical equation when switch 1 is closed. Now let us see the mathematical equation when switch 1 is closed. If switch 1 is closed, if switch 1 is closed, if switch 1 is closed, then P1 power will be what? जल्दी बताओ, स्विच नंबर 1 अगर अपन क्लोज करते हैं तो पावर क्या आएगा? वी आई कॉस फाई से बताना है तुम लोगों को। स्विच 1 को बंद करा अपन ने, तो वी आर वाई इंटू आई आर, हेलो, वी आर yes sir वाई इंटू आई आर, है ना। तो वी आई, अब कॉस फाई कितना है अपना यहाँ पर? वी आर वाई पे अपन ने क्या लिखा है? cos 30 plus 5. cos 30 प्लस थीटा, राइट, है ना। तो वी आर वाई डॉट आई आर इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस थीटा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. Similarly, when switch 2 is closed, मतलब P2 निकाल लेते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा स्विच 2? जल्दी बताओ। V switch 2 sir R was VRB VRB, right, VR into IR into IR cos of 30 minus theta 30 minus theta, right. This will be equation number 2. So for the balance system, these two voltages are same. For the balance system, these two voltages are same. लिख लो यार इसको, है ना। बैलेंस होना चाहिए सिस्टम। सिंगल वॉट मीटर में मैंने बताया था कि भाई ये तभी काम करता है जब सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। ओके, सो फॉर ए बैलेंस सिस्टम दिस टू वोल्टेजेस आर सेम, दिस टू वोल्टेजेस आर सेम, एंड दिस लाइन टू लाइन वोल्टेज या आई आर इज ए लाइन करंट। ओके, आई आर इज ए लाइन करंट, सो दिस वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर बी इज इक्वल टू वी लाइन टू लाइन, that will be equal to v line to line, और ये जो करंट है आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी विल बी इक्वल टू आई। भाई सेम है ना, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज, ये एल टू एल मतलब लाइन टू लाइन, ओके, लाइन टू लाइन वोल्टेज, और ये लाइन करंट हो गया अपना। तो ये सब, ये वोल्टेजेस आपस में सेम है, करंट भी आपस में सेम है। सो इफ यू सम अप द इक्वेशन नंबर 1 and 2, व्हाट वी विल गेट? इफ वी सम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 will get P1 plus P2 is equal to what? जल्दी बताओ। इसको अपन V ले लेते हैं, इसको I ले लेते हैं। cos of 30 plus theta plus cos of 30 minus theta, इसको सॉल्व करके बताएं, ये टोटल पावर हो जाएगा अपना, कितना होगा ये? कितना आ जाएगा?
एम आई ऑडिबल और नॉट? इसका आंसर तो दे दो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आशी, आर्ची, आलोक, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, तो sir. बोलो भाई, इसका आंसर तो दे दो, यस सर नो सर में तो देना है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि आवाज आ रही कि सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसको ऐड करें, कितना आ रहा है ये? चलो यार, है ना, ऐड करके बता देना मेरे को, है ना, ठीक है, मैं Sir, बता रहा हूँ। √3 VI cos phi. Sorry, हाँ, cos ये तो theta. फाइनल आंसर है, cos थीटा। ठीक है, इसको आप फर्दर मैथमेटिकली सॉल्व कर देना। So this is our three phase power. So this is our three phase power, and by this method you can measure three phase power by a single wattmeter. But the only condition is the system has to be balanced. The system has to be balanced. Okay? समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। अब कल 2 वॉट मीटर मेथड करेंगे अपन लोग। 2 वॉट मीटर मेथड करेंगे अपन लोग, 2 वॉट मीटर लगाएंगे, या देखेंगे भाई कि एक यहाँ पे तीनों लाइन में एक एक वॉट मीटर भी लगा सकते हैं, तीनों लाइन में एक एक वॉट मीटर भी लगा सकते हैं, और एट ए टाइम 2 वॉट मीटर्स को ऑपरेट करेंगे अपन लोग, राइट? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं मैं। समझ में आया ये सब आज की क्लास में? Yes, Yes, sir. sir.